उदारे च धारन्तु वसुदैव कुटुम्बकम्। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। चल नीताबेन ब्रह्म निर्वाण नहीं पहला भजन ले। सॉरी कलाबेन पहला भजन। हाँ जी ओके। मारी जीवननी नैया संभाळो श्रीनाथजी पार उतारो ठाकुरजी पार उतारो। श्री राधे राधे बोल श्री कृष्ण कृष्ण बोल श्रीनाथजी पार उतारो ठाकुर जी पार उतारो। महाप्रभु जीए पुष्टि मार्ग बताव्यो पुष्टि भक्ति वदो अमारी पूर्णिमा जेवी एवा संतो आशीष आपो एवा संतो आशीष आपो। मारी जीवननी नैया संभाळो श्रीनाथजी पार उतारो ठाकुर जी पार उतारो। भक्ति मार्ग गीता मां समजाव्यो गीतानु ज्ञान देनार गुरु ने सत सत वंदन हो सत सत वंदन हो। मारी जीवननी नैया संभाळो श्रीनाथ जी पार उतारो ठाकुर जी पार उतारो ठाकुर जी पार उतारो। श्री कृष्ण अर्पण। वेरी नाइस भजन, बहुत अच्छा। एक खास बात मैं कहूंगा यहाँ पर, ये भजन कलाबेन खुद लिखा है। अरे उन्होंने हमारे सत्संग के लिए इसकी खुद रचना की है। अरे वेरी गुड, वेरी नाइस, कृष्ण कृपा। यस हमारे बीच में एक कवियत्री है, ये आज पता चला हमें। अरे अरे वाह, अरे वाह, बहुत सुंदर। ઓનલી ભજન નો શોખ છે તો બની ગયું કૃષ્ણ કૃપાથી। આ સહેલું નથી લખવું, એ સહેલું નથી। હા નિબંધ લખવો સહેલો છે, કવિતા લખવી સહેલી સહેલી નથી। નથી, સાચી નિબંધ વાત કોઈ છે। પણ લખી શકે। બરાબર, વેરી નાઇસ, વેરી નાઇસ। આ ભગવાને જે કલાબેન ને કલા આપી છે એ તમે આગળ વધારો, ચાલુ રાખો। सही बात, कला बहन को कला मिली है। बहुत सही, बहुत सही। બસ કૃષ્ણની કૃપા રહી આપણા ઉપર। બસ આ તમે સતત લખતા રહો, ભગવાને કદાચ એ આશીર્વાદ આપ્યા છે એ કરવા માટે તમને। થેન્ક યુ બિજલભાઈ, તમારા આશીર્વાદ। ભગવાન કૃષ્ણના આશીર્વાદ સૌને। બસ બસ યા કોંગ્રેટ્સ કલા, હા કોંગ્રેટ્સ, સરસ લખ્યું છે। લાગે છે પણ જરા એવું ના રાખો મન। ય એનમ વેતિ હંતારમ યશ્ચેનમ મન્યતે હતમ ઉભો તો ન વિજાનીતો નાયમ હંતિ ન હન્યતે। એટલે આ શ્લોકનો અર્થ એમ થાય છે કે જે મનુષ્ય આ અવિનાશી આત્માને હણનાર સમજે છે તથા જે મનુષ્ય એને હણાયેલ માને છે તે બંને નથી જાણતા। આ આત્મા વાસ્તવમાં નથી હણતો અને નથી કોઈના દ્વારા હણાતો। હવે હું એનું વિવેચન કરીશ। ય એનમ વેતિ હંતારમ, જે આ શરીરીને મારવા વાળો માને છે તે બરાબર નથી સમજતો, કારણ કે શરીરીમાં પોતાપણું નથી। જેવી રીતે કોઈ કારીગર ગમે તેટલો ચતુર હોય પણ ઓજાર વગર તે કાર્ય કરી શકતો નથી।
એવી જ રીતે શરીર વિના પોતે કંઈ પણ કરી શકતો નથી. આથી ભગવાને કહ્યું છે કે બધા જ જાતની ક્રિયાઓ પ્રકૃતિ દ્વારા જ થાય છે. એવો અનુભવ કરે છે તે શરીરના અકર્તાપણાનો અનુભવ કરે છે. આ અનુભવ જ્યારે આપણે ક્ષણે ક્ષણે સ્મરણ અને રોજ સત્સંગ કરીએ ત્યારે જ અનુભવ થાય છે. દર મંગળવારે ક્લાસ ભરી પછી ભૂલી જઈએ તો અનુભવ નથી થતો. એ 8 દિવસ સુધી તે વાગોળી તેનો રસ પ્રાપ્ત કરીએ તે શરીરી કરતાપણું નથી, પરંતુ આ શરીર સાથે તાદાત્મ્ય કરીને અને સંબંધ જોડીને શરીરથી થવાવાળી ક્રિયાઓમાં પોતાને કરતા માની લે છે. યશ્ચેનં મન્યતે હતમ, જે એને મરેલો માને છે તે પણ બરાબર નથી સમજતો. જેવી રીતે આ શરીરી મારવા વાળો નથી, એવી જ રીતે આ મરવા વાળો પણ નથી, કેમ કે એમાં કદી કોઈ વિકૃતિ નથી. જેમાં વિકૃતિ આવે છે અને પરિવર્તન થાય છે, અર્થાત જે ઉત્પત્તિ વિનાશશીલ હોય છે તે જ મરી શકે છે. ઉભો તો ન વિજાનીતો નાયમ હંતિ ન હન્યતે, તેઓ બંને નથી જાણતા, અર્થાત જે આ શરીરીને મારવા વાળો અને મરવા વાળો બંને માને છે તે પણ બરાબર નથી જાણતો, કારણ કે આ શરીરી વાસ્તવમાં એવો નથી. એ નાશ કરનારો પણ નથી અને નષ્ટ થનારો પણ નથી. એ નિર્વિકાર રૂપથી નિત્ય નિરંતર જેમ છે તેમ રહેવા વાળો છે. અર્જુન સમક્ષ યુદ્ધનો પ્રસંગ હોવાથી જ અહીં શરીરને મારવાની ક્રિયાથી રહિત દર્શાવવામાં આવ્યો છે. વાસ્તવમાં શરીરી એ સગળી ક્રિયાઓથી રહિત છે. કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. ખૂબ જ સરસ, ખૂબ જ સરસ નીતાબેન. થેન્ક યુ. આ સાંભળ્યા પછી મારે આમાં કાંઈ કહેવાનું રહેતું નથી. હા, બહુ સરસ एक्सप्लेनेशन. अकर्ता, आत्मा अकर्ता है. मारना तो बहुत दूर की बात है, कुछ भी नहीं करता आत्मा, तो मारेगा कहां से? एट द सेम टाइम मरता भी नहीं. मरता कौन है? जिसमें विकृति है. विकृति यानी चेंज. जो चेंज हो रहा है उसका नाश होगा. जो बदल ही नहीं रहा है, जैसा है वैसा ही है, तो उसका नाश कैसे होगा? आत्मा बदलता नहीं, आत्मा में कोई चेंज आता नहीं, कोई विकार नहीं, इसके लिए वो अविनाशी. अकर्ता, सिर्फ अकर्ता नहीं, अभोक्ता भी. हम करता क्यों है? मनुष्य करता है, हम कर्म करते हैं. क्यों? क्योंकि हम भोक्ता है. दोपहर को खाना है, इसके लिए सुबह किचन में जाते हैं, कर्म करने के लिए. भोगना है, इसके लिए कर्म है. मैन गो टू ऑफिस. क्यों कर्म करते ऑफिस जाने का? क्योंकि भोगना है. अच्छा खाना है, अच्छा पहनना है, अच्छे घर में रहना है. भोगना है, इसके लिए कर्म है, करता है. आत्मा भोगता नहीं, इसके लिए उसे कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, और बदलता नहीं, इसके लिए उसका नाश भी नहीं होता है. शरीरी, नीताबेन ने सब जगह पर शरीरी शब्द का उपयोग किया. शरीरी यानी आत्मा. एक शरीर है और एक शरीरी. शरीरी यानी आत्मा, वो अविनाशी है. इसके ऊपर सारी भगवत गीता में यही भाव, यही विचार भगवान ने हमें समझाने का प्रयास किया. बस ये परम सत्य, सत और असत. शरीर असत है, शरीरी सत है. अगर ये समझ में आ गया तो जीवन सरल, जीवन सुखी हो जाएगा हमारा. सभी पीड़ा बाहर नहीं उद्भव होती है, अंदर उद्भव होती है. एक आदि है जो शरीर को होता है, उसे आदि कहते हैं. मन को होता है वो व्याधि, मन की पीड़ा को व्याधि कहते हैं. और जो बाहर से आता है वो उपाधि. यहां पर हम सत्संग कर रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी पावर चला जाए मेरे यहाँ, तो सत्संग बंद, ये उपाधि. उसमें ना मेरा शरीर का कोई दोष है, स्थूल शरीर का, ना सूक्ष्म शरीर का. बाहर से आया, उसे उपाधि कहते हैं. तो ये सभी से मुक्त होना है,
तो हमें अपने आप को अंदर से बदलना होगा। बाहर की परिस्थिति पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। दिवाली में बारिश आएगा, क्या कर सकेंगे हम? कुछ नहीं। नवरात्रि में बारिश आएगा, क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। हमें स्वीकार करना है बस। जो हमारे बस में नहीं है बदलना, उसे स्वीकार कीजिए, और वो भी हंसते हुए। लेकिन जो संभव है हम कर सकते हैं, उसमें इतना भी आलस्य नहीं होना चाहिए, इतना भी हमारा प्रयत्न कम नहीं होना चाहिए। मेरी वृत्ति, मेरी इच्छा, मेरे निर्णय, ये तो मेरे हाथ में है ना। हम है दृढ़ उसमें? अपने आप को पूछो। जो भी हमने निश्चय किया वो दृढ़ता से किया है? कहीं ना कहीं मन हमारा निर्बल हो जाता है, एक बार, दो बार, तीसरी बार पे हम छोड़ देते हैं वो वस्तु, क्योंकि दृढ़ता नहीं है, निश्चय नहीं है, निर्धार नहीं है हमारा। पिछले श्लोक में क्या देखा हमने? ये द्वंद्व मोहि निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रता। जो दृढ़ व्रती है, व्रत यानी संकल्प, एकादशी का व्रत, सबने संकल्प किया, मैंने भी किया संकल्प। एक एकादशी की, दूसरी की, तीसरी की, चौथी में हुआ, एक नहीं किया तो क्या होता है? पांचवी में सोचा अगली बार करेंगे, छठी में अगली बार, कहा वो संकल्प गुम हो गया, पता नहीं चला। मन बदलता रहता है। बुद्धि के द्वारा लिए गए निर्णय भी हमारे क्षीण हो जाते हैं। इसके लिए हम दृढ़व्रती नहीं। दृढ़व्रती कैसे बने? मन में जो इच्छा की, संकल्प किया, बुद्धि ने जो निर्णय लिया, उसको पकड़ के रखे। कुछ भी हो, हम ये करेंगे। एक बार बहुत ठंडी के दिवस थे, और हमारा पार्ला का सत्संग तो टेरेस पे करते हैं, ओपन एयर में हम। तो उस दिन खाली 4 लोग आए थे, और वो भी स्वेटर शाल सब लेकर आए थे। लेकिन हमने किया सत्संग, 4 तो 4। ये दृढ़ व्रत है। भले वेदर ऐसी थी कि सबको सहन नहीं होता है, लेकिन यंगस्टर्स आए थे, बच्चे आए थे, और एक दो बड़े आए थे, दो तीन बच्चे, एक आध बड़ा आए थे। 4 लोगों में भी हमने सत्संग किया। क्यों? कमिटेड टू गॉड। शुक्रवार को सत्संग करेंगे, अर्थात करेंगे। जब तक एक भी व्यक्ति है तब तक मैं बोलूंगा, एक भी व्यक्ति नहीं होगा तो मैं अध्ययन करूंगा भगवान। लेकिन ये समय तेरे लिए निश्चित किया है मैंने। 8 साल हो गए, निश्चय टूटा नहीं है अभी तक, और ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि कोई सुनने वाला ना हो। भगवान भेजते हैं सबको। ये दृढ़ मान्यता। आपके मन में जो इच्छा होती है सत्संग करने की, वो इच्छा आई कहां से? भगवान ने भेजी वो इच्छा। कहीं ना कहीं भगवान का संकेत है इसमें कि हमें इसकी इच्छा हुई। नहीं तो अन्य कितनी चीजें करने जैसी दुनिया में, कोई कमी है? फिर भी भगवान के समीप जाने की इच्छा हुई हमें, ये उसका ही संकेत है। हमारे ही अच्छे कर्म है कि हम मिले। पहले तो हम इतने सारे लोग, और मिलकर हम सतमार्ग पे चल रहे हैं। नहीं तो सभी आप देखो, सोशल ग्रुप्स, क्लब्स, लोग मिलते तो है लेकिन करते क्या है आप ही देखो, खाली मनोरंजन। इसके आगे दे डोंट हैव एनी अदर एक्टिविटी। मनुष्य का उद्धार क्या है, इस पर विचार ही नहीं है। मेरी गति क्या है? व्हाट इज द एम ऑफ माई लाइफ? मेरे जीवन का पर्पस, ध्येय क्या है मेरे जीवन का? अपने आप को पूछना चाहिए। इसके लिए पहले आपको प्रश्न होना चाहिए कि मैं कौन हूं, कहां था, कहां से जन्म लिया, कहां जाऊंगा, और क्यों आया यहां पर? कुछ तो कारण होगा। एक कारण होता है और एक कार्य होता है। मिट्टी कारण है, और मिट्टी से जो बना घड़ा, वो उसका कार्य है। तो जैसे घड़े ने आकार लिया है, वैसे ही ये मेरा शरीर भी एक आकार है, एक घट है। ये अगर कार्य है तो उसका कारण क्या है? क्यों मुझे ये आकार मिला, शरीर मिला?
क्यों मुझे ये जन्म मिला, इसके पीछे का कारण क्या, इस पर विचार होना चाहिए। मैं क्यों आया यहाँ पर, कहाँ जाना है मुझे। મનુષ્ય જન્મમાં જ આપણે ઉદ્ધાર આત્માનો કરી શકીએ છીએ. यस, એટલે હા, એટલે આપણને મનુષ્ય શરીર મળ્યું છે તો એ ખોવાવું ન જોવે. હા, પણ આપણે કર્યો ઉદ્ધાર. હા, થાય છે, ટ્રાય કરીએ છીએ. हाँ, क्योंकि दो तत्व है, परा अपरा। अपरा प्रकृति इतनी प्रबल है, एक तो पांच पांच इंद्रिय दी भगवान ने मनुष्य को, और इस विश्व के अंदर हजारों विषय छोड़ के रखे हैं। पांचों इंद्रिया सुबह होते ही एक एक विषय के पीछे दौड़ती है, वहां से उसको पकड़ के लाना है वापस। ये तेरे जीवन का ध्येय नहीं है, ये साधन है। हमने साधन को कितना इंपॉर्टेंस दिया। ये घर साधन है, मेरे जीवन का ध्येय नहीं है। ये जो हम 2 टाइम खाते हैं, पहनते हैं, ज्वेलरी, क्लोथ्स, ये सब जीने के साधन है। और इसके पीछे तो सारा जीवन बिगाड़ दिया मैंने, सारा जीवन व्यतीत कर दिया, ये कमाने के लिए और कमाने के बाद उसको भोगने के लिए। मेरे से मूर्ख कौन। ध्येय की चिंता नहीं, ध्येय की समझ नहीं, और जो साधन थे जीने के लिए, उसके पीछे संपूर्ण जीवन का विनाश कर दिया मैंने। तो दृढ़ व्रत, जो दृढ़ व्रती है वो मुझे प्राप्त करेगा। भगवान कृष्ण कहते हैं, येषाम त्वंतगतम पापम जनाना पुण्य कर्मणाम। जिनके पापों का नाश हुआ है, जैसे ही पाप का नाश होता है, फिर आपके द्वारा जो भी आप करेंगे वो पुण्य कर्म होगा। पाप का नाश होवे कैसे, पिछली बार पाप के ऊपर विचार किया हमने। ज्ञान से होता है पाप का नाश। जो भी पापी है उसे उस क्षण ज्ञान नहीं रहता कि जो मैं कर रहा हूं वो पाप है। यदि ज्ञान से आप पाप को नियंत्रण नहीं कर सकते तो ईश्वर से एक रूप हो जाओ, भगवान के सानिध्य में चले जाओ। वो सत स्वरूप है। भगवान के सानिध्य में भगवान के चरणों में, भगवान के सानिध्य में हम गए तो सत्य के सानिध्य में गए तो सत्य कर्म ही होगा हमारे से। तो सत्य इच्छा ही होगी मेरे मन के अंदर। सभी पापों का मूल इच्छा है। कर्म गलत क्यों है, क्योंकि इच्छाएं गलत हुई। इच्छा गलत क्यों हुई, क्योंकि वृत्ति गलत थी। ये वृत्ति कहां से आई, ये वृत्ति आई आपके ही पिछले जन्म के कर्म से। तो क्या इससे मुक्ति पाना संभव नहीं है? संभव है। पिछले जन्म के कर्म से जो आपको परिस्थिति प्राप्त है, वो परिस्थिति सहन करो आप, उससे पिछले जन्म के कर्मों का नाश होगा आपके। और नए कर्म जो आप कर रहे हैं वो सत्कर्म हो, इसका ख्याल रहे आपको। ये नए कर्म मेरे अच्छे कैसे हो, सत्कर्म कैसे हो, पाप कैसे ना हो, ईश्वर के सानिध्य में जाओ। या तो तीव्र ज्ञान होना चाहिए मेरे पास, एक एक क्षण का मैं अवलोकन कर रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या सोच रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, इसका अवेयरनेस होना चाहिए, तो हमसे पाप नहीं होगा। क्रोध आता है तो क्या होता है, क्रोध में हमारी बुद्धि नाश हो जाती है, राइट एंड रॉन्ग भूल जाते हैं हम। क्रोध चुप कर देता है बुद्धि को। तो ये एक दृष्टा, जैसे आत्मा एक दृष्टा है, मैं आत्मा हूं तो आई हैव टू ऑब्जर्व, आई हैव टू सी, आई हैव टू लुक कि ये शरीर के अंदर क्या हो रहा है। अब दूसरे व्यक्ति को कितने ध्यान से देखते हो, इसने क्या पहना है, कैसे चलता है, क्या करता है। अपने आप को क्यों नहीं देखते, मेरा मन क्या सोच रहा है, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं। हम आत्मा है तो हमें शरीर को ऑब्जर्व करना है, दृष्टा होकर। कहीं गलत विचार तो नहीं आ रहे, विचारों पर मेरा कोई कंट्रोल ही नहीं है, क्योंकि वो प्रकृति से प्राप्त है। अब कितना भी चाहो
विचार अच्छे बुरे आते ही रहेंगे मन के अंदर, क्योंकि मेरा उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। तो ये मनुष्य देह जो मिला है वो हमारे कई जन्मों का पुण्य है। कभी कंप्लेन मत करो, पहले समझो कि तुम मनुष्य हो। आप चींटी नहीं हो, आप कबूतर नहीं हो, आप सांप नहीं हो, आप कुत्ता नहीं हो, आप मनुष्य हो। ये हमारे अंदर एक अस्मिता निर्माण करनी चाहिए। इसने अन्य सभी जीवों से श्रेष्ठ हूं मैं, ये समझना है हमें। और ये जन्म क्यों मिला है? क्योंकि इस जन्म के अलावा कहीं पर मोक्ष की संभावना नहीं है। नए कर्म करने का वरदान भगवान ने सिर्फ मनुष्य को दिया। स्वर्ग लोग भी भोग योनि है, खाली स्वर्ग में खाली एंजॉयमेंट है। इसीलिए तो लोग स्वर्ग के पीछे पड़े हैं कि मरने के बाद हमें स्वर्ग में जाना है। क्यों? टू एंजॉय। वहां पे भी काम करना होता तो कौन मांगता स्वर्ग? स्वर्ग में खाली खुशियां है, खाली एंजॉयमेंट है। लेकिन खाली एंजॉयमेंट से प्रगति कुछ नहीं होगी। स्वर्ग से मुक्ति नहीं मिलती है, स्वर्ग से मोक्ष नहीं मिलता है। वहां पर सुख भोग कर वापस आना है भैया। तो जो ज्ञानी होगा वो इस अल्प सुख के लिए मैं क्यों स्वर्ग की कामना करूं? जो अल्टीमेट है वो ही ना सोचूं मैं। इस सुख दुख से मुक्ति दोनों से ऊपर। तो ये 28वें श्लोक में हमने देखा कि जब पाप नाश होता है तो हमारे से जो होता है वो केवल पुण्य रह जाता है पीछे। और ऐसा व्यक्ति, उनके जीवन से सभी द्वंद्व निकल जाते हैं, द्वंद्व से मुक्त होता है और दृढ़ व्रता होता है वो, भगवान को भजता है वो। जब भगवान को भजते हैं तब क्या होता है? जब भगवान को भजते हैं हम तो संसार से छूट जाते हैं। प्रयास करो पूर्ण तन्मयता से श्री कृष्ण शरणम मम बोलो आप, पूर्ण तन्मयता से। अन्य कोई विचार मन के अंदर नहीं होना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षरी मंत्र नारद जी ने ध्रुव को दिया था। ध्रुव जब तपस्या करने गया वन में तो नारद जी ने कहा कि अगर तू इतना दृढ़ है कि नहीं मैं तपस्या करूंगा ही अपने पिता को खुश करने के लिए, नारद जी ने उसे ऑफर दी। जंगल में तो जानवर रहेंगे, खा जाएंगे तुझे, तू कैसे बालक है, तू कैसे तपस्या करेगा? राजा को, आपके पिता को मैं जानता हूं, मेरे कहने पर वो आपको उनकी गोद में बिठाएंगे सिंहासन पर। ध्रुव जी कहते नहीं, मैं अपने स्वबल पर वो प्राप्त करूंगा। भले ही कितना भी कठिन हो मार्ग, लेकिन मैं अपने स्वबल से वो प्राप्त करूंगा। ये आत्मनिर्भर होना ये है। और तभी नारद जी उन्हें 12 अक्षरी मंत्र देते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ये जब हम तन्मयता से इसके ऊपर विचार करते हैं तो सभी सांसारिक विचार हमारे छूट जाते हैं। इसके लिए जो बचता है ईश्वर को, वो ईश्वर के समीप जाता है और मन से सभी राग द्वेष निकल जाते हैं उसके। ऐसा व्यक्ति जो भजन करेगा भगवान का, वो दृढ़ व्रती रहेगा। वही दृढ़ व्रती हो सकता है। हमारा व्रत कौन हिला देता है? हमारा व्रत सांसारिक इच्छाएं हिला देती है। हम जो संकल्प करते हैं वो आजीवन पूर्ण क्यों नहीं कर सकते? कहीं ना कहीं कुछ अन्य करने की इच्छा आ जाती है और वो हमारा व्रत तोड़ डालते हैं। ये क्यों आई इच्छा? क्योंकि मन में से भगवान का स्मरण गया, इसके लिए संसार का स्मरण आया। तब वो हमारे संकल्प, हमारे व्रत टूटते हैं। जो दृढ़ व्रती होता है वो भगवान में, मन में भगवान का ही नाम है, उसके संकल्प टूटेंगे कैसे? तो ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रता। भजन कर रहा है इसके लिए दृढ़ व्रती है, भजन कर रहा है इसके लिए उसके व्रत टूटते नहीं है। पूर्ण तन्मयता से ईश्वर का भजन करता है। तो ये था हमारा 28वां श्लोक।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट श्लोक पे, 29वें श्लोक पे। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये, ते ब्रह्म तद विदु कृत्सन म अध्यात्म कर्म चाखिलम। सेकंड लास्ट श्लोक 7वें अध्याय का। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये, यतन्ति यानी प्रयत्न करना, जरा वृद्धत्व, मरण मृत्यु, और उसके बाद मोक्ष, ये चार अवस्था क्यों आई हमारे अंदर? शरीर की अवस्था आई है। बाल्य अवस्था, कुमार अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, वृद्ध अवस्था, और उसके बाद मृत्यु। ये चारों पांचों अवस्थाएं शरीर की अवस्थाएं है, क्योंकि शरीर विकारी है। विकार यानी चेंज, शरीर बदलता रहता है। हमारे अंदर लाखों कोष है शरीर के अंदर, और वो हर रोज बदलते रहते हैं। पुराने मरते हैं, नए कोष जन्म लेते हैं। हमारा वजन बढ़ता है, वजन घटता है, बालों का रंग चेंज हो जाता है, दांत आते हैं, दांत जाते हैं। ये क्रम चलता ही रहता है शरीर के अंदर। कौन करता है ये हो गया, ये सबको दिखता है, बट किया किसने? अपने आप। ये अपने आप क्यों हो रहा है शरीर के अंदर चेंज? क्योंकि शरीर वृष्टि समष्टि का अंश है, संसार का अंश है, अपरा प्रकृति से उत्पन्न हुआ है, और उसका गुण है कि वो बदलती ही रहती है, कभी स्थिर नहीं होती। तो क्योंकि उसमें विकार है, बदलाव है, इसके लिए शरीर में वृद्धत्व आता है, और फिर शरीर का नाश होता है, शरीर मृत्यु होती है। पर जो मेरे आश्रय में आया वो मामाश्रित्य यतन्ति ये, जरा मरण से मुक्त होकर मोक्ष मिले, इसका प्रयत्न कौन करता है? जो मेरे आश्रय में आया वो। तो क्या भगवान के आश्रय में जाने से वृद्धत्व अटक जाएगा या मृत्यु अटक जाएगी? ये संभव है? भगवान के आश्रय में गए तो संभव ही नहीं है। शरीर को मृत्यु नहीं आएगी तो मोक्ष आएगा कैसे? हम तो इतने बड़े हैं नहीं कि सदेह स्वर्ग जाए। तुकाराम जी सदेह वैकुंठ गए थे। भगवान कृष्ण भी बालका तीर्थ से सदेह वैकुंठ गमन किया था उन्होंने। पारदी ने जब तीर मारा उनको, अग्निदाह नहीं हुआ था भगवान के शरीर का, सदेह गए थे वो। गुजराती में कहावत है ना, आप मुआ अगर स्वर्गे न जवाए। स्वर्ग अगर चाहिए तो पहले मरना पड़ेगा आपको खुद को, तभी स्वर्ग जा सकोगे। तो मोक्ष संभव नहीं मृत्यु के बिना। तो जो ईश्वर के सानिध्य में जाता है, भगवान के जो आश्रय में जाता है, ऐसा नहीं कि उसको मृत्यु नहीं आएगी, ऐसा नहीं कि उसको वृद्धत्व नहीं आएगा, लेकिन अगर भगवान का सानिध्य प्राप्त हो गया तो इसकी हमें फिक्र ही नहीं रहेगी। मुझको परम पद प्राप्त हुआ है। भगवान, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं, और मेरा जीवन का लक्ष्य आप हो। अगर ये भाव दृढ़ हो गया तो शरीर का जो होना है वो होए, क्या फर्क पड़ता है? ये ज्ञान होना चाहिए, ये भाव होना चाहिए, भगवान मेरे साथ है और मैं भगवान का हूं। ये भाव यदि दृढ़ हो गया तो फिर इस शरीर का कोई भी हमें चिंता नहीं रहेगी। शरीर की, उसको वृद्धत्व आए मृत्यु आए कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे ही महामृत्युंजय जाप, अगर महामृत्युंजय जाप करने से मृत्यु टल जाती तो कोई मरता ही नहीं। उससे क्या होता है? उससे हमारा मन दृढ़ होता है इस सत्य को समझने के लिए। मृत्यु का भय दूर होता है उससे, उसको सहन करने की शक्ति मिलती है हमें।
मन को समझा सकते हैं उसके द्वारा हम ये सत्य है, इसे कोई बदल नहीं सका। जिसने जन्म लिया है उसका नाश निश्चित। ये सत्य हमें समझ में आता है। सुना तो बहुत है, लेकिन फिर जब हम वो जाप करते हैं मन के अंदर तो उसकी अनुभूति होती है, मन दृढ़ बनता है उससे। तो भगवान के आश्रय में गया, उसको फिर चिंता नहीं रहती क्या होगा इस शरीर का। उसमें व्याधि आए, वृद्धत्व आए, रोग आए, मैं नहीं हूं वो, ये शरीर मेरा है, उसमें जो होना है वो होए। मुझे भगवान का सानिध्य चाहिए, मुझे भगवान का भजन चाहिए। ये भाव जब दृढ़ होता है तब शरीर के ऊपर से हमारी आसक्ति चली जाती है, और उसके बाद पीड़ा की अनुभूति होती है, लेकिन वो हमें विचलित नहीं करती। आज सिर दुख रहा है, ये पता चलता है हमें कि सिर में दर्द है, लेकिन वो हमें विचलित नहीं करेगी, क्योंकि हम उससे जुड़े हुए नहीं है। हम रास्ते पे जा रहे हो, कहीं बाजार में गए, मार्केट में गए, और किसी वृद्ध व्यक्ति को देखा, तो आपको दुख होता है कभी? कभी नहीं। इतने सारे वृद्ध व्यक्ति है, ये भी एक वृद्ध है, क्यों दुख नहीं हुआ? क्योंकि वो मैं नहीं हूं, वो वृद्ध व्यक्ति मैं नहीं हूं, इसके लिए उसको देखकर दुख नहीं होता है। वैसे ही अगर मैं मेरे शरीर की तरफ देखूं तो ये मैं नहीं हूं, तो मुझे दुख नहीं होगा। अन्य के सफेद बाल देखकर चिंता नहीं होगी हमें, लेकिन हमारे आ गए तो 4-5 टेंशन आ जाता है। क्यों? व्हाइट हेयर मुझे आ गए, ये पीड़ा ही मेरा जो है उसकी है। तो जब शरीर को मैं मेरा समझता ही नहीं तो वो मुझे पीड़ा देगा ही नहीं। भगवान के आश्रय में जाने से ये होता है, हमें सत्य समझ में आती है कि मैं ईश्वर का अंश हूं, ये शरीर उधार का है, ये शरीर केवल इस जन्म की यात्रा करने का एक साधन है। यहां से अहमदाबाद जाना है, तब तक के लिए ट्रेन में हमें जगह मिलती है। अहमदाबाद आया, उतरो, यात्रा पूर्ण आपकी। फिर मुड़ के कभी हमने देखा ना ये ट्रेन का क्या हुआ, हम उतर गए बाद में, वो आगे गई, पीछे गई, यार्ड में गई, कुछ पता नहीं, उसके ऊपर हमारा लक्ष्य नहीं होता है। वैसे ही इस साधन के ऊपर क्यों इतना लक्ष्य देना? साधन के द्वारा हमें ध्येय तक पहुंचना है। ये जो गाड़ी है उसके द्वारा वैकुंठ तक हमें यात्रा करनी है। अगर गाड़ी को ही ध्येय मान गए तो कभी नहीं पहुंचोगे वैकुंठ। तो जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये, जो मेरे आश्रय में आया वो यत्न करेगा, प्रयत्न करेगा। क्या प्रयत्न करेगा? जरा मृत्यु से ऊपर उठकर मोक्ष की के लिए प्रयत्न करेगा वो, जो मेरे आश्रय में आ गया। भगवान के आश्रय में गए तो अपने आप सत्कर्म होने लगे हमारे से, दुष्कर्म हो गए ही नहीं हमारे से। यह हमें मोक्ष प्राप्ति कराएगा। ते ब्रह्म तद्विद् कृत्स्नम अध्यात्मम कर्म च अखिलम। आरंभ कैसे किया था 7वें अध्याय का? भगवान ने अर्जुन को कहा, इस अध्याय का नाम क्या है? 7वें अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग। और आरंभ में भगवान ने अर्जुन को कहा कि अब मैं तुझे ज्ञान विज्ञान सहित मेरा समग्र रूप क्या है वो समझाऊंगा तुझे। क्या हेतु था इसके पीछे? इसके पीछे हेतु ये था कि अर्जुन को वो भक्त बनाए। हम अच्छे टीचर के पास अपने बच्चों को क्यों भेजते हैं ट्यूशन के लिए? क्योंकि हमें विश्वास है कि वो अच्छे टीचर है। वैसे ही हम गुरु किसको बनाएंगे? जब हमें विश्वास उत्पन्न होता है कि इनके पास ज्ञान है, तब हम उनके यहाँ ज्ञान लेने को जाते हैं। वैसे ही हम भक्त कब बनेंगे? जब हमें श्रद्धा होगी कि वो भगवान है, तभी हम भक्त बनेंगे उसके। शिष्य गुरु के होते हैं, भक्त भगवान के होते हैं।
तो ये भगवान है। ये जब श्रद्धा उत्पन्न होगी तभी हम उसके भक्त बनेंगे। और इसके लिए अर्जुन को समग्र स्वरूप भगवान समझाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं कि मैं कौन हूं ये समझ। ये जब तू समझेगा तो तेरे संशय दूर हो गए। तेरे संशय दूर हुए तो तू मेरी बात मानेगा, तब तुझे श्रद्धा उत्पन्न होगी और तब तू मेरी बात मानेगा। हमारी पीड़ा क्या है? हमें किसी के ऊपर श्रद्धा नहीं है। वी डाउट एवरीबॉडी, इसके लिए दुखी है। श्रद्धा रख के देखो, विश्वास रख के देखो, जीवन लाइट हो जाएगा, सुखी हो जाएंगे हम। थोड़ा कुछ कम मिलेगा, लेकिन जितना भी मिला सुख से रहेंगे हम। एक दूसरे पे विश्वास ही नहीं करेंगे। संबंध के मूल में ही यदि अविश्वास है तो उस संबंध रूपी वृक्ष के ऊपर फल कैसे आएंगे? कड़वे फल आएंगे। संबंध में विश्वास रखो एक दूसरे के ऊपर, तो आपको अमृत जैसे फल चखने को मिलेंगे। नहीं तो कड़वे फल संसार वृक्ष देगा आपको। हर एक संबंध पे विश्वास रखो। ये विश्वास कब आएगा? व्हेन वी ट्रस्ट गॉड। भगवान के ऊपर विश्वास होगा तो भगवान के क्रिएशन के ऊपर भी विश्वास होगा। हम सब एक ही भगवान का के संतान है। एक ही भगवान ने हम सबका सर्जन किया है। हम सब उसी के संतान। तो अगर कृष्ण पे श्रद्धा है तो कृष्ण की संतान पे भी मुझे श्रद्धा है। वहां पर हमें शंका नहीं करनी चाहिए। एकाद अपवाद रूप गलत केस हो जाता है तो हम उसे नियम बना देते हैं, सबको शंका की दृष्टि से देखते हैं। ये नेगेटिविटी है। जीवन में पॉजिटिविटी होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। और फिर देखो आपके जीवन में कितनी खुशियां आती है, आपके अंदर कितना आत्मविश्वास आता है, कॉन्फिडेंस। हमारा कॉन्फिडेंस कब जाता है? जब सामने वाले पे भरोसा नहीं होता है, तब कॉन्फिडेंस जाता है। मुझे पूर्ण श्रद्धा है, सब लोग सुन रहे हैं, तभी तो मैं बोल रहा हूं ना। जरा भी डाउट आए तो ये लोग सुन नहीं रहे तो मैं बोल ही नहीं सकूंगा। एक भी सेंटेंस में बोल नहीं सकूंगा अगर मेरे मन में डाउट आ गया कि ये लोग सुन नहीं रहे तो। विश्वास रखेंगे, श्रद्धा रखेंगे तो आगे बढ़ेंगे हम। तो ते ब्रह्म तद विदु। विदु यानी वेद, विदु ये सब यानी जानना, टू नो। कौन जानेगा ब्रह्म को? वो व्यक्ति जो मेरे आश्रय में आया है। ब्रह्म क्या है? आत्मा क्या है? आत्मा वो तत्व है जो सभी का आधार है, सारे ब्रह्मांड का आधार है। वो परा प्रकृति, चैतन्य। उसके लक्षण क्या है? उसके गुण क्या है? सत्य चित्त आनंद, ये उसके गुण है। सत्य यानी होना, आत्मा है। चित्त यानी ज्ञान स्वरूप, और आनंद, आनंददायक। जब आप संसार को छोड़कर आत्मा में स्थित हुए तो जो आपको निजानंद प्राप्त होगा, वो आनंद आया कहां से? वो आत्मा का लक्षण है। आप शक्कर खाओगे तो आपको मुंह में मीठा रस ही उत्पन्न होगा, क्योंकि मिठास वो शक्कर का गुण है। वैसे ही आप आत्मा में स्थित होगे तो आपको आनंद की अनुभूति होगी, क्योंकि वो उसका गुण है। परम ज्ञान होगा। ब्रह्म ज्ञान वो परम ज्ञान है। इससे ऊपर कोई ज्ञान नहीं। ब्रह्म विद्या परम विद्या है। अविकारी है आत्मा, कोई चेंज नहीं, जैसा था वैसा। हजारों साल से, हजारों साल से ऐसा ही, आने वाले हजारों साल ऐसा ही रहेगा। अनादि अनंत, ना उसका आदि है ना उसका अंत है, जो हमेशा था, है और रहेगा। क्यों रहता है? क्योंकि अविकारी है, उसमें कोई चेंज नहीं, इसके लिए उसका नाश नहीं। अजन्मा, अनादि, न हन्यते हन्यमाने शरीरे।
ना किसी को मारता है ना मरता है। ये ब्रह्म के लक्षण। ब्रह्म सम है, ब्रह्म निर्दोष है। सम यानी जहां पर भेद नहीं है। ये भेद विश्व में कब उत्पन्न हुए? जब आत्मा शरीर धारण करके व्यक्त हुआ और एक व्यक्ति निर्माण हुआ। जो व्यक्त हुआ है वो व्यक्ति कैसा हुआ? शरीर अलग 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 सब। 8 बिलियन का पॉपुलेशन है विश्व में, लेकिन किसी दो व्यक्ति के फिंगरप्रिंट सेम नहीं है। किसी दो व्यक्ति की आंखों की पुतलियां सेम नहीं है। आवाज तक सेम नहीं है किसी की। प्रकृति में विविधता है, लेकिन ब्रह्म उससे ऑपोजिट। ब्रह्म में समानता है। ये शरीर के अंदर जो आत्मा है सबकी अलग अलग है। जरा उंगली काट के देखो, खून का रंग क्या है? सबका लाल ही आता है, किसी का ब्लू नहीं आता है, किसी का काला येलो नहीं आता है। आत्मा सम है, समान है सभी की। और सृष्टि उससे ऑपोजिट, उसमें विविधता। दोनों तत्व पोल्स अपार्ट, एग्जैक्टली ऑपोजिट एक दूसरे से। तो यदि आपको विश्व के अंदर समानता लानी है तो शारीरिक भेद को मत देखिए, अपनी दृष्टि को उठाइए। इस शरीर के अंदर जो आत्मा है वो सभी की समान है। यदि विश्व में कोई एकता है तो आत्मा की एकता है। आत्मानि अधि इति अध्यात्म। मैं आगे बहुत कहा है कि आत्मा दर्शन करो, आत्मा दर्शन करो। हम शरीर के दर्शन करते हैं। ये आदमी कैसा है? ये लंबा है, ये नाटा है, ये मोटा है, ये सुंदर दिखता है। हम शरीर के दर्शन करते हैं। इससे ऊपर उठो और आत्म तत्व का दर्शन करो। इससे क्या होगा? इससे सभी अपने लगेंगे। सभी अपने लगे तो वसुधैव कुटुंबकम। आपने देखा होगा, हम दूसरा श्लोक कुछ समय के बाद बदलते हैं, लेकिन पहला श्लोक कभी नहीं बदलते। अभी यहाँ पर हमारे पार्ला सत्संग में बाल सत्संग की भी तैयारियां चल रही है। एक हमारी सत्संगी बहन है, उसने 1 महीने का सिलेबस भी बना दिया कि बालकों को कौन से भजन सुनाएंगे, बाल गीत सुनाएंगे, कौन सी कथा कहेंगे, क्या क्विज पूछेंगे उनको। 1 महीने का सिलेबस भी तैयार कर दिया है। तो उनको भी मैंने कहा ये पहला हमारा ध्रुव श्लोक है, ये कभी नहीं बदलेगा। वसुधैव कुटुंबकम। ये केवल बोलने या समझने के लिए नहीं है। इसका भाव होना चाहिए हमारे अंदर से। यहाँ हम सब एक है और सभी जीव, खाली मनुष्य नहीं, सभी जीव। भूत यानी जिसके अंदर लाइफ है। इसमें वनस्पति और वृक्ष भी आ गए। यदि वृक्ष और वनस्पति पे हमें भाव है, प्रेम है, तो ही उसको हम नहीं काटेंगे। आज वो प्रेम नहीं रहा है, इसके लिए सारी एनवायरनमेंट को काट रहे हैं हम। घर बनाने के लिए, रास्ता बनाने के लिए, फैक्ट्री बनाने के लिए, 8 लेन हाईवे बनाने के लिए, एक्सप्रेसवे बनाने के लिए लाखों पेड़ काट रहे हैं हम। क्योंकि पेड़ के ऊपर प्रेम नहीं है हमें। मनुष्य भूल गया है, प्रकृति मनुष्य पे निर्भर नहीं है, मनुष्य प्रकृति के ऊपर निर्भर है। अगर पेड़ काट दिए तो हम भी कट जाएंगे उनके साथ। ये भाव नहीं है। भाव क्यों नहीं है? क्योंकि समझ नहीं है। जैसे मैं एक जीव हूं, वो भी एक जीव है, और सभी के अंदर जो जीवन है वो समान है। ये भाव यदि हम समझ में आए तो वसुधैव कुटुंबकम क्या जो कल्पना है, जो उच्च विचार हमें हमारे पूर्वजों ने दिया है, वो सिद्ध होगा। फिर यूक्रेन और रशिया की वॉर नहीं होगी, फिर इजराइल और ईरान की वॉर नहीं होगी। सब प्रेम से समझ के रहेंगे। टिकट लेकर आए हैं हम, अलग अलग गाड़ी में सवार है सब। किराया जितना दिया है उतना ही टिकट ट्रेन का उपयोग करना है। जिस दिन किराया खत्म, बाय बाय, जर्नी कंप्लीट।
कोई लेकर कुछ भी जाने वाला नहीं है यहां से, तो किसके लिए हम लड़ रहे हैं? अहंकार, सत्व रज तम, ये जो हमारा अहंकार है वो हमसे ये सब करवा रहा है। इच्छाएं भी अहंकार के अंदर बैठी है। बिना मैं की कोई इच्छा ही नहीं होती है, मैं, मुझे, मेरा। और ये अहंकार क्यों इतना प्रबल है? क्योंकि हम ईश्वर से जुड़े हुए नहीं। जब सत का संग छूटता है तो अहम जागृत हो जाता है। जब सत का संग होता है तो मैं कुछ नहीं, भगवान तू, ये समझ में आता है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। जो विमूढ़ है, मूढ़ आत्मा है, जो अहंकारी है, वो क्या समझता है? मैं करता हूं। जो ज्ञानी है वो क्या समझता है? गुणा गुणेषु वर्तन्ते। मैं कुछ नहीं कर रहा, ज्ञानी कहेगा। ये मेरे मन का गुण है कि उसने इच्छा की, मेरे बुद्धि का गुण है कि उसने निर्णय लिया, मेरे शरीर के गुण है कि उसने कर्म किया, मेरा वाणी का गुण है कि बोले। तो मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं, मैं तो आत्मा हूं, अकर्ता हूं मैं। ये जो शरीर के द्वारा जो भी हो रहा है मेरा, उसके ऊपर मेरा कोई आधिपत्य नहीं है, वो उसके ही गुण है। शरीर के द्वारा जो गुण कर्म हो रहा है वो शरीर के गुणों के द्वारा ही हो रहा है। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। ये ज्ञानी ऐसे सोचता है। जो अहंकार से विमूढ़ आत्मा होता है, कर्ता अहम इति मन्यते, वो क्या मानता है? मैं कर रहा हूं। शकटनो भार जेम श्वान ताणी। बैलगाड़ी चल रही है, सामान से लदी हुई। बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता चल रहा है, उसको लगता है मैं ये सामान लेके चल रहा हूं, मैं ये बैलगाड़ी खींच रहा हूं। उसको ये भाव होता है, जो कुछ भी नहीं कर रहा है। वैसे ही जो ज्ञानी होता है, मैं नहीं कर रहा हूं, ये मेरे शरीर के द्वारा हो रहा है। ज्ञान से हम ईश्वर से एक रूप होते हैं, और तभी हमारा अहंकार विलीन होता है, निर्मूलन होता है उसका। विनम्रता आती है ज्ञान के द्वारा। आम का पेड़ होता है, उसके ऊपर जब आम आते हैं तो वो झुकता है। ज्ञान ऐसा है। ज्ञान वो फल के समान है। ज्ञान जब उद्भव होता है तो व्यक्ति विनम्र होता है, झुकता है। ये कब होगा? जब ज्ञान ईश्वर से मिला हुआ हो। तो यदि उस ज्ञान में भगवान नहीं है तो वो और उद्दंड बनाएगा वो ज्ञान हमें, और अहंकार को पुष्ट करेगा। मेरे जैसा कोई नहीं ज्ञानी। जब ये बात आए तो समझना, ईश्वर इज एब्सेंट, गॉड इज एब्सेंट। ज्ञानी हो और साथ में ईश्वर का भाव हो, तब विनम्रता आती है। हमारे संतों में ये था, ऋषियों में ये था। इतना ज्ञान होने के बाद भी अहंकार, उद्दंडता ये नहीं थी। क्यों? क्योंकि ईश्वर से जुड़े हुए थे। भगवान मैं नहीं तू, ये समझ गए थे वो। तो ते ब्रह्म तद विद्दु, वो सारे ब्रह्म को जानते हैं। कृत्स्नम अध्यात्मनम, सारे अध्यात्म को जानते हैं। आत्मा से रिलेटेड जो भी है वो अध्यात्म। हरेक पदार्थ के अंदर ईश्वर का वास है। वासुदेव सर्वम। ये ईश्वर कहो आप, या एनर्जी कहो, चैतन्य कहो, हरेक फिजिकल पार्टिकल के अंदर भी एनर्जी है। अणु को जब हम फोड़ते हैं, बॉम्ब, तो क्या निकलता है? उसमें से ऊर्जा निकलती है। इसे आप एनर्जी कहिए, ऊर्जा कहिए, या ईश्वर कहिए, सब एक ही है। भगवान ऊर्जा स्वरूप है, एनर्जी स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है। तो आध्यात्मिक ज्ञान यानी हर एक पदार्थ के अंदर चैतन्य का वास, ईश्वर का वास है। ये आध्यात्मिक ज्ञान। तो ब्रह्म ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, कृत्स्नम यानी संपूर्ण, कर्म चाखिलम, अखिल यानी संपूर्ण। सारे कर्म कैसे हो रहे हैं?
इसकी समझ। कर्म प्रकृति के द्वारा हो रहे, सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, किसने किया, सृष्टि चलती कैसे है, ब्रह्मांड कैसे चल रहा है, वो ऐसे ही रहेगा या इसका भी अंत होगा। ये कर्म अखिलम। हमारे लिए कर्म यानी क्या, सुबह उठे, ऑफिस गए, शाम को वापस आए, ये हम कर्म समझते हैं उसको। जब आध्यात्मिक दृष्टि आती है तो हम ऊपर उठते हैं कि ये ब्रह्मांड कैसे चल रहा है। साइंटिस्ट, उसको उसका घर कैसे चलता है उसमें इंटरेस्ट नहीं है, ये सारे प्लैनेट्स कहाँ घूम रहे हैं ये देखने में इंटरेस्ट है उसको। ये भी कर्म है, सृष्टि में हो रहा कर्म। तो ये अखिल कर्म यानी सारे ब्रह्मांड में जो कर्म हो रहा है, विश्व की उत्पत्ति, विश्व का प्रलय, विश्व की स्थिरता, ये कैसे हो रही, इसकी समझ, ये कर्म च अखिलम। तो मेरे जो सानिध्य में आता है, भगवान कहते हैं, उसे सभी ज्ञान हो जाता है। ब्रह्म ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, और सारा संसार कैसे चलता है इसका ज्ञान। ये ज्ञान जब होता है उसे, तो वो जरा मरण के चिंता से ऊपर उठ जाता है। हमें ज्ञान नहीं है, इसके लिए हम जुड़े हुए हैं संसार से, क्योंकि अज्ञानी है हम। जिस दिन ब्रह्म ज्ञान हो गया, इसका कोई अहमियत, कोई महत्व नहीं रहेगा हमें। ऐसा व्यक्ति जो मेरे आश्रय में आया है, उसे सभी ज्ञान हो जाएगा। ये था हमारा 29वां श्लोक। इसके ऊपर यदि कोई प्रश्न हो तो हम ले सकते हैं, नहीं तो समय हो गया है, तो आज हम सत्संग का समापन करें। और अगले मंगलवार मेरे ख्याल से धनत्रयोदश है, धनतेरस, दिवाली का आरंभ हो जाता है 5 दिनों का। तो अगले मंगलवार हम अनध्याय रखेंगे दिवाली के तौर पर। और आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं और नवीन वर्ष की भी मंगल कामनाएं। आप सबके जीवन में दिवाली हो, ऐसी प्रभु से कामना करूंगा मैं। हैप्पी दिवाली। थैंक यू बिजल राय, थैंक यू। सारी शुभकामनाएं। तो अगले आपने पण शुभकामनाएं। थैंक आपको भी यू। शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, सर्वे को हैप्पी दिवाली। जय श्री तो अगले मंगलवार हम नहीं मिलेंगे, उसके बाद के मंगलवार से पुनः हमारी आध्यात्मिक यात्रा ऐसे ही शुरू। आरंभ रहेगी। सर्वे ने जय श्री कृष्ण, हैप्पी दिवाली। सर्वे ने जय श्री कृष्ण, हैप्पी दिवाली। शुभ दिवाली।